let's don't waste any more time. First of all, আজকে হচ্ছে অ্যালুমিনাই সেমিনার। মানে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট প্রাউডেস্ট মোমেন্ট। এর আগেও আমরা আমাদের অ্যালুমিনাই সেমিনার অ্যাটেন্ড করেছি তোমাদের সঙ্গে। এবং অ্যালুমিনাই সেমিনার মানে হচ্ছে বিং এন এইচওডি, বিং এন অ্যানিমেশন ফ্যাক্ট টিচার, এবং আমার সঙ্গে এখানে যে আমার শিক্ষক বন্ধুরা রয়েছে তাদের সবার তরফ থেকে I would like to welcome Mr. Auditro Banerjee. Auditro, can I have... Hello, sir. Hello, everyone. Auditro, আমাদের Auditro Studio 56 এ as an 3D animator হিসেবে কাজ করছে। তো আমি ব্যক্তিগতভাবে থ্যাংক ইউ সো মাচ অরিত্র, এত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের সঙ্গে সময় বের করতে পেরেছিস এবং আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছিস, এবং হি ওয়াজ হ্যাপিলি এগ্রিড টু শেয়ার হিজ এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড নলেজ উইথ অল অফ ইউ। এখনো আমাদেরই ছাত্র, সারা জীবন আমাদেরই ছাত্র থাকবে। You are one of a prominent success story of us, as well as you are, Auditro is one of the most prime example of how to become a professional animator amongst all the negative thoughts, amongst all the মানে যত খারাপ চিন্তা ভাবনা, নেগেটিভ থটস, এই হয় ওই হয় এই হয়, তার মধ্যে থেকেও কি করে নিজের লক্ষ্যে অবচলিত থাকা যায়, কি করে নিজের কাজের উপরে ভরসা রেখে স্টেপ বাই স্টেপ এগোতে হয়। তো আমি খুব বেশি সময় আর নেব না, এই সেমিনারটা আমার নয় অ্যাট অল। আমি এখানে শিখতে এসেছি, আমি এখানে দর্শক, আমি এখানে শ্রোতা। সো আই উড ওয়েলকাম অরিত্র ওয়ান্স এগেন। এবং অরিত্র, প্লিজ, স্টেজ ইজ অল ইয়োর্স, ক্লাস ইজ অল ইয়োর্স। এবং আমি প্রথমে জানতে চাই, অরিত্র ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ। এখানে অনেকেই তোমাকে চেনে না, সো ইউ ক্যান ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ প্লিজ। তুমি তোমার মতো করে নিজের সম্বন্ধে কিছু যদি বলো, সেটা খুব ভালো হয় সবার জন্য। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে আমাকে? হ্যাঁ, ইয়েস, তোমার কথা শোনা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ স্যার, অনেক ভালো কথা বললেন, ফর গ্রেট ওয়ার্ডস। আমি অরিত্র ব্যানার্জি, আমি হাইটেক থেকে পাস আউট, এক্স হাইটেক, এক্স মুপেল যাই বলো এখন। আমি 2020-21-এ কাইন্ড অফ ওখান থেকে আমি আমার কোর্স শেষ করেছি। কোর্স শেষ করে আমি কারেন্টলি এখন স্টুডিও 56-এ অ্যানিমেটেড, এখানে অলমোস্ট আমার 1 বছর হয়ে গেছে। 1.32 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স এখানে হলো। আর এর আগেও আমি 2 বছর, 2+ ইয়ার্স আমি আগে একটা কোম্পানিতে ছিলাম অ্যাজ অ্যান অ্যানিমেটর অফকোর্স। স্টার্টটা মানে স্টার্টিং আমি অনেক আগের থেকেই আঁকতাম, মানে আঁকা পছন্দ করতাম আর্টিস্ট। অনেক ছোটবেলা থেকেই আঁকাটা আমি কন্টিনিউ করে এসেছি। তারপর স্কুল লাইফের শেষে অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট, মানে 2D আর্টিস্ট হিসেবেই আমার জয়েন করার ইচ্ছা ছিল। বাট সামহাউ মানে আমার মনে হলো যে মানে কারেন্টলি যে ওয়ার্ল্ডটা যেদিকে যাচ্ছে, মানে 3Dর দিকে যাচ্ছে, 2D থেকে শিফট হয়ে একটা একটা রিয়েলিস্টিক বা যে কোনো একটা ডিজিটালি প্ল্যাটফর্ম হয়ে গেছে। তো কোনোভাবে আমার মনে হলো যে একবার 3Dটাকে এক্সপ্লোর করা যেতে পারে, ভালো লাগুক বা না লাগুক। কারণ 2Dতে আমি এক্সপ্লোর করার মতো অনেক কিছু করে নিয়েছিলাম তার আগে। তো 3Dটা কেমন যাবে না আমি জানতাম না। তো ভাবলাম যে একবার ঢুকে দেখি। আর তারপরেই মুপেলে ঢোকা আমার। প্রথমবার আমি হাইটেক তপসিয়ায় ভিজিট করেছিলাম। আর ইন্টেরিয়ার দেখে, সবকিছু দেখে আমি এতটাই কনভিন্স হয়ে গেছিলাম যে উইদাউট এনি সেকেন্ড থট আমি ভেবেছিলাম যে না, আমি করতে চাই 3D, আমি 3D অ্যানিমেশন করতে চাই। আর তখন অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ স্টেজ আমি অ্যানিমেশন বলতে কিছু জানতাম না, মানে কিভাবে কাজ হয় ইন্ডাস্ট্রিতে, কিভাবে কাজ হচ্ছে কারেন্টলি, বা কি প্রসিডিওর ফলো করা হয়, কিছুই জানতাম না। জাস্ট আমি কার্টুন দেখতে ভালোবাসতাম তোমাদেরই মতো। মানে ম্যাক্সিমাম যারা এখানে জয়েন করে সবাই মুভিজ, কার্টুন অ্যাডিক্ট হয়, বা কোনো একটা পয়েন্ট অফ টাইমে এগুলো বানানোরও একটা স্বপ্ন থাকে। তো সেম স্বপ্ন আমারও ছিল। এবং আমাকে প্রথম থেকে সবকিছুই শেখানো হয়, ফটোশপ থেকে শুরু করে মডেলিং, রিগিং, একটা যে পাইপলাইন পুরো থাকে অ্যানিমেশনে যাওয়ার আগে, মডেলিং থেকে রিগিং, টেক্সচারিং, লাইটিং, অ্যান্ড দেন অ্যানিমেশন লাস্ট স্টেজে। বাট আমি এতটা শিওর কি করেছিলাম জানি না, বাট প্রথম থেকেই মানে মডেলিং যখন আমাকে শেখানো, আমি তখন থেকেই ভেবেছিলাম যে না, আমি অ্যানিমেশনেই যাবো, আমি আদার কোনো জিনিসে ইন্টারেস্ট আমি শিখতাম, ভালো লাগতো না। হয় না যে এক একটা ক্লাসে মানে তোমার অন্য টপিকে তুমি অন্য জায়গায় থাকছো, মানে ওই ক্লাসটা জাস্ট তোমার বডি আছে, তুমি
বাট তোমার মাইন্ডটা কোনো একটা জায়গায়, আমার মাইন্ডটা তখন অ্যানিমেশনের দিকে ছিল। আমি অন্য মানে সাথে অ্যানিমেশন রিলেটেড নিয়ে ডিসকাশন করতাম, অন্য ক্লাসেও আমি মাঝে চেষ্টা করতাম যদি কিছু এক্সট্রা শেখা যায়। তো আলটিমেটলি অ্যানিমেশন শুরু হলো, আর আমি রিগ্রেট করিনি সেই জিনিসটা। পুরোটাই মানে যে ভালোবাসা বলে সেটাই পুরোপুরি আমি জন্মে গেছিল অ্যানিমেশনের ওপর, যেটা আমার প্রথম থেকেই লেগেছিল যে জন্মাবে। তো কারেন্টলি আমি আমার কোনো আমার টাইমে আমার মনে হয় ফিল করিনি যে কেন ওটা করিনি, বা আমি কেন আমি আমার এত লেট হলো চাকরি পেতে। কারণ অনেকটাই টাইম ছিল যেখানে একটু ইন্ডাস্ট্রি ডাউন ছিল, আমরা সবাই জানি। একটা টাইম গিয়েছিল কোভিডের পর যেখানে ইন্ডাস্ট্রি একটু ডাউন গেছে, বাট কারেন্টলি আমি বলতে চাই যে ইন্ডাস্ট্রি অনেক বুস্ট আপ হতে চলেছে। আমরা সবাই জানি লাস্ট ইয়ার্সে যে একটা মুভি বেরিয়েছিল, অ্যানিমেটেড মুভি নরসিংহা বলে যে মুভিটা বেরিয়েছিল, মহাবতার, ওটা আমরা যখন অ্যানাউন্স হয়েছিল তখন আমরা কেউই এক্সপেক্ট করিনি যে অত লো বাজেট উইদাউট এনি বিগ ফেস, মানে বলিউডে কোনো পার্টিকুলার কোনো হিরো বা কোনো কিছু কাস্ট হয়নি, কেউ কিচ্ছু নেই, কোনো জানাশোনার নাম বা কোনো হাই বাজেট কিছুই নেই, কোনো অ্যাকশন কোনো ইনভলভ ছিল না তার মধ্যে। বাট তাও সেটা যেভাবে সাকসেস হয়েছে, মানে ইভেন সাম বিগ বাজেট মুভিজ কুডন্ট ডু দ্যাট। লাইক 300-400 crores অফ বাজেট দিয়ে যারা মুভি ফ্লপ হচ্ছে, আর সেই মুহূর্তে সেই পয়েন্ট অফ টাইমে যে লেভেল অফ পারফরমেন্সটা দেখিয়েছে, যে হোলটা দেখিয়েছে, আর পুরোটাই ওয়ার্ড অফ মাউথ, লোকেরা দেখেছে। কন্টেন্ট, যে কন্টেন্টের উপর ভরসা দেখেছে সেই কন্টেন্টটাই ওরা সেল করেছে, কোনো নাম বা স্টারস কিছুই ছিল না, রাইট? একদম একদম পুরোটাই ওয়ার্ড অফ মাউথে গেছে। মানে প্রথম দেখতে গেলে যদি আমি গ্রাফটা দেখি সেই মুভিটার, প্রথম 2 সপ্তাহ অতটাও রিচ করেনি, বাট যেই লোকে বাইরে গিয়ে বলেছে যে ইম্প্যাক্টটা কতটা ভালো। আর এখন তো একটা বড় অ্যাডভান্টেজ আছে আমাদের আর্টিস্টের, যেটা হলো সোশ্যাল মিডিয়া রিলসের থ্রু দিয়ে যেভাবে ভাইরাল হয়েছে সিনস বা কন্টেন্ট, তো সেটাতে লোকেরা হেভিলি ইন্সপায়ার্ড হয়ে সেটা লোক আরো দেখেছে, 1-2 বার দেখেছে, এরকম অনেকজন আছে। তারা এই ইন্ডাস্ট্রির কেউই না, মানে অ্যানিমেশন তারা জানে না, বাট সেটা ডিভোশনাল বলে যে দেখেছে তার কোনো মানে নেই, কারণ এর আগেও অনেক ডিভোশনাল ফিল্ম বেরিয়েছে, অ্যানিমেটেড বেরিয়েছে। অ্যাবসলিউটলি, মানে এর আগেও আমরা দেখেছি এরকম মাইথোলজিক্যাল বা ডিভোশনাল সিনেমা। আমাদের ইনফ্যাক্ট ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি হিস্ট্রি বলে শুরু থেকে এই হতো, সে হনুমান বল যাই বল, কিন্তু কোনোটাই আমাদের না টেকনিক্যালি ভালো লেগেছে না কন্টেন্ট ওয়াইজ ভালো লেগেছে। দিস হ্যাজ মেড সামথিং ডিফারেন্ট। এবার এই ইম্প্যাক্টটা পড়ার পর এখন কারেন্টলি যে স্টেজে আছে ইন্ডাস্ট্রিটা, এখন এরপর থেকে শুরু, কারণ এরপরে অনেক মুভিজ এরকম হোল্ডে আছে, এরকম লাইন আপে আছে, আর এরকম অ্যানিমেটেড মুভিজ যেখানে আগে প্রোডাকশন হাউসটা কি ছিল, মানে ভরসা পেত না এই মানে টাকা ইনভেস্ট করার পেছনে যে এটা আদৌ চলবে কিনা, অ্যানিমেটেড মুভিজ কি চলবে আগের হিস্ট্রিতে এরকম। বাট এখন এমনই করে দেখেছে, মানে টার্নিং এমনই নিয়েছে যে এরপর থেকে সবাই অ্যানিমেটেডে করছে। এখন বলতে গেলে লাইভ টিকে আছে আর এটা রাইজ হচ্ছে। আচ্ছা অরিত্র, আমার এরপরের যে প্রশ্নটা ন্যাচারালি আসে, কি এতদিন মানে তুই তো একটা স্টুডেন্ট থেকে অ্যানিমেটেড হয়েছিস, প্রোডাকশনে কাজ করছিস, সো হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স যেটা তুই এখন দেখতে পাচ্ছিস? অফকোর্স ছাত্রাবস্থায় তুই একভাবে শিখেছিস, এবং আমার বিশ্বাস তুই যখন প্রোডাকশনে গেছিস তুই আরো শিখছিস, এখনো তুই স্টুডেন্টই, আমরা সবাই স্টুডেন্ট এই বিউটিফুল ক্রাফটে। বাট কিভাবে তুই সেই এই ডিফারেন্সটা তুই কিভাবে দেখিস, বা তুই আমাদেরকে বোঝাবে কি করে যে এখন প্রোডাকশনে গিয়ে তুই যেটা শিখছিস সেটা তুই কিভাবে শিখছিস, বা ডিফারেন্সটা কি, মানে হাউ ইউ ডেসক্রাইব দিস হোল থিং? এই যে তুই এখন প্রোডাকশন বা ছাত্রাবস্থায়, মানে এরা সবাই, আমরা সবাই একটা মাইন্ডসেট থাকে, স্পেশালি আমি মাইন্ডসেটের কথা বলছি, সেটা যখন প্রোডাকশনে চলে যায় সেখানে কি কি চেঞ্জেস আনতে হয়, বা কি ধরনের টাইম শিফটের কাজ হয়, বা কিভাবে তোরা একটা শর্টকে তোরা দেখিস, বা তোদের কাছে কি ধরনের ব্রিফ আসে, ওই ব্যাপারে যদি। হ্যাঁ, প্রথমত একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, মানে যখন যখন ইন্ডিয়ার টিমে ফর সাপোজ ইন্ডিয়ার টিমে যখন কোনো একটা কেউ নিচ্ছে, ডেবিউ মারছে কোনো একটা নতুন প্লেয়ার, আগে ইন্ডিয়ার টিমে খেলেনি, আন্ডার-19 কোনো লোকাল টিমে খেলেছে, সে কিন্তু ইন্ডিয়ার টিমে গিয়ে খেলা শেখে না, সে করে তার আগেই সে খেলা জানে। তো আমার মুপেলে আমি অলরেডি আমি জানতাম, মানে পুরো ব্যাপারটা আমি শিখে এসেছি অ্যানিমেশনটা। আমাকে এখানে জানতে হতো যে এখানে যেটা থাকবে সেটা হলো অডিয়েন্স ক্রাউড প্রেশার, মানে তোমার
টাইমসের প্রেশার, আর আমাকে জাস্ট পারফর্ম করতে হবে উইথ প্রপার প্ল্যানিং। আমার যদি প্ল্যানিং প্রপার থাকে, মানে আমি কিভাবে আমার শর্টকে প্ল্যান করছি বেসিক্যালি, মানে প্রোডাকশনে যেটা ডিফারেন্স সেটা হলো আমরা এর আগে করেছি, মানে আমার সময় বের করলাম, এখন 1 ঘন্টা দিলাম, কাল না পরশু দিন দিলাম, আস্তে আস্তে শর্টটা বের হলো 1 মাসে। তোমাকে এখানে শর্টটা প্ল্যান করতে হবে যে 2 দিনে বের করতে হবে। তো 2 দিনে আমি কোন কোন টাইম আর কতটা টাইম দেবো প্রোডাকশনে, টোটালি আমার যেটা মানে যেটা ভালো লাগে সেটা হলো আমি ফ্রি, আমি যখন ইচ্ছা গিয়ে কাজ করে আসতে, কোনো প্রপার বাউন্ডারি নেই। আমি চাইলে 2টো শিফটেও কাজ করতে পারি, শিফটে কাজ করতে পারি, বাট একটা শিফটে কাজ করলে আমাকে একটা শিফটেই বের করতে হবে, 2টো শিফটে কাজ করলে আমি হাফ করে নেবো, হাফ করে নেবো। তো আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমি শর্ট একটা চেস সিকোয়েন্স ছিল, সামনে একটা বাইক যাচ্ছে, বাইকের উপর একটা আছে, সেই বাইকটা বেরিয়ে যাবে ক্যামেরার বাইরে, পেছনে একটা ভ্যান তাকে চেস করছে, এবং যখন বাইকটা বেরিয়ে গেল, ভ্যানটা যখন চেস করছে, পাশে একটা পাহাড় আছে, পাহাড় থেকে আর একটা বাস নেবে, ভ্যানটাকে উড়িয়ে দেবে, উড়িয়ে দিয়ে টার্ন নিয়ে ওই বাইকের পেছনে যাবে। এটা একটা শর্ট ছিল। তো এটার জন্য দিনের ডেডলাইন আমাকে দেওয়া হয়েছিল, বা আমি নিয়েছিলাম। এখানে তোমাকে ডেডলাইন দেয় না, ডেডলাইন দিয়ে দেয় যে এটা 2 দিনের শর্ট, বাট তোমাকে বলতে হবে যে এটা তুমি কোন 2 দিন। আমার একটা রিকোয়েস্ট এসেছে স্টুডেন্টের কাছ থেকে, ফিউ স্টুডেন্টস যারা হিন্দিতে একটু বেশি স্বচ্ছন্দ, তো আমার মনে হয় তুই যদি হিন্দিতে কলকাতার বাইরে আছিস, আই এম শিওর ইউ ক্যান স্পিক ইন হিন্দি, তো একটু যদি হিন্দিতে বলিস। তোর না ভয়েসটা মাঝে মাঝে কেটে কেটে যাচ্ছে, মানে তোর নেট কানেকশনে মনে হয় একটু ডিসরাপশন আসছে, সেটা একটু যদি দেখিস ভালো হয়। अच्छा ओके ओके। अरे मेरे को पहले ही समझना चाहिए था, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं हिंदी कंफर्टेबल रहते हैं, बंगाली में थोड़ा दिक्कत आता है फॉर द इंटरप्शन। और अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं एक बार चेक कर लूंगा I will do that. I will do that. I will do that. ओके सर। तो जस्ट कि मैं दोनों का वो शॉर्ट था, तो आई हैव टू प्लान दैट आउट कि कैसे मुझे वो 2 दिन में खत्म करना है। और उससे पहले वाला मेरा जो शॉर्ट चल रहा था वो डिले में चल रहा था काइंड ऑफ, ठीक है। तो जो बस वाला सीक्वेंस था जो मुझे खत्म करना था, वो सैटरडे का शॉर्ट था, और सैटरडे हम लोग का हाफ डे रहता है, तो हाफ डे के बाद वो अप्रूव करते हैं शॉर्ट्स, वो चले जाते हैं। उससे पहले 2 बजे तक वो रहता है, 2 बजे से पहले उसका अप्रूवल लो, खत्म करो, उसके बाद हो गया शॉर्ट, ऐसा है। तो मैंने वो शॉट पकड़ा था फ्राइडे का 4 बजे, 4 बजे मैं वो शॉट पकड़ा था, और मेरे को फ्राइडे सुबह से वो शॉट चालू करना था, फ्राइडे और सैटरडे का टाइम था। तो ऑलरेडी डिले में चल रहा था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे वो शॉट आ जाएगा, क्योंकि मुझे पर्सनली, मेरा अगर प्रेफरेंस पूछोगे तो मेरा बस वाला शॉट बहुत पसंद है। बस और जो गाड़ी वाला शॉट होता है ना, वैसे मुझे बहुत पसंद है वो, मतलब क्योंकि मुझे उसका वो आइडिया आ गया कि कैसे क्या होता है। अगर तो कोई भी चीज़ का आइडिया आ जाता है ना, तो आप कितना वो करो, वो आपको हो जाएगा। आपका वो माइंड क्लियर रहना चाहिए कि कैसे कैसे करना है। ओके, सो मैंने वो शॉट पकड़ा फ्राइडे दोपहर को, और वो देर रात तक काम किया। सुबह थे टीएल चलेंगे थे, किसी को दिखाने का ऑप्शन नहीं था मेरा, लेकिन मैं कि मैं कर दूंगा, मेरा मुझे उसका रिव्यू नहीं चाहिए, रिव्यू 2 रिव्यू में खत्म कर दूंगा। मैं पूरे रात काम किया, देर रात शिफ्ट मैंने किया, और सैटरडे फिर देर सैटरडे को मैंने जल्दी आ गया, और जल्दी आके मैं वो शॉट 2 रिव्यू में खत्म कर दिया। तो ऐसे आपको प्लान करना पड़ेगा हर एक शॉट्स को, कैसे आप डील करोगे। एक डिले में चलता है, ठीक है, दूसरा वाला आप टाइम से पकड़ लो, ऐसा कोई ये नहीं होता, दिक्कत नहीं होता। ओके, और तो आज के टाइम में जब हम लोग स्टूडेंट्स जब सीखते हैं, स्टूडेंट्स के पास हम लोग जब बेसिक एनिमेशन, उन लोगों का जो शोज पे जो लोग काम करते हैं, बेसिक्स के बाद हम लोग ह्यूमन बने, बेसिक वॉक रन ये सब में जाते हैं। तो आज हम लोग सोचे थे कि अगर ये जो बॉडी मैकेनिक्स है, स्पेशली प्रोडक्शन में, इस बॉडी मैकेनिक्स को, जैसे हम लोग बॉडी मैकेनिक्स में यहाँ पर एक्शंस को रखते हैं, बॉल थ्रो, हैमर हिट, जहाँ पर ह्यूमन बॉडी का जो परफॉर्मेंस पता चलता है, उसमें कितना कितना क्या टाइमिंग होगा, क्या डिले आएगा, ये सब चीजों पे ध्यान देते हैं। बट जहाँ पर अभी आप हो, वेयर यू आर वर्किंग राइट नाउ, वहां पर जब ह्यूमन बॉडी मैकेनिक्स लेकर आप लोग काम करते हो, वो उसके बारे में अगर हम लोगों को कुछ शेयर करोगे, योर करेंट कोई प्रोजेक्ट शॉट्स जिसमें आप काम कर रहे हो, या जो भी आप काम कर चुके हो,
तो बॉडी मैकेनिक्स ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है एनिमेशन का, ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, इसको आप लोग प्रोडक्शन में किस तरीके से इसको हैंडल करते हो? क्या कोई स्पेशल टिप्स है, क्या कोई स्पेशल प्रोसेस है जिसको हमें और भी ध्यान रखना चाहिए? ओके, बॉडी मैकेनिक्स अगर हम एनिमेशन को ओवरऑल एनिमेशन में अगर हम लोग शोरील में क्या देना चाहिए, तो हमारे सबसे पहले दिमाग में आता है एक्टिंग शॉट्स देना चाहिए। दो लोग बात, कोई भी एक्टिंग वो देना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो चीज इम्पैक्ट डालता है वो है शॉट्स। क्योंकि आप अगर एक्टिंग में भी देखोगे तो उसमें भी बॉडी मैकेनिक्स आता है, वो बहुत एडवांस और चीजें दिखता नहीं है, लेकिन आप अगर बॉडी मैकेनिक्स प्रॉपर प्रैक्टिस डायरेक्ट आप जंप। হয়তো তোর ভয়েস ভীষণ কাটছে, কিন্তু মানে মাঝে মাঝে ভিডিওটা ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছে। अच्छा, একটু যদি নেট কানেকশনটা একটু मैं দেখে। নো প্রবলেম, নো প্রবলেম, টেক ইউর টাইম। এটাতে বেটার আসে। यस, यू कैन कंटिन्यू, यू कैन कंटिन्यू। ओके ओके, तो हाँ, तो जैसे बॉडी मैकेनिक्स का जो मेन चीज होता है, मेन कंट्रोलर अगर मैं बोलूँ तो वो सीओजी का कंट्रोलर रहता है। कोई भी शॉट्स हो अबव द हिप शॉट, इनफैक्ट जो हमारा जो क्लोजअप, जो फेस क्लोजअप जो शॉट्स रहते हैं, उस पे भी जब आपको हिप से कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है कि आपका हिप है, आपका हिप स्टेबल नहीं है। क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं, हम लोग अपर बॉडी तो हिला लेते हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग जो होता है, वो चेन जो होता है, वो बीच एकदम जो ग्राउंडेड जो कंट्रोलर रहता है सीओजी, उससे स्टार्ट होता है। अगर अगर आप काम नहीं भी करना चाहते हो तो आप कोई भी चीट कर सकते हो। ग्लोबली आप उसे मैनुअली वो फील डाल सकते हो कि आपका वो जो बेस है वो भी हिल रहा है बॉडी के साथ। हाँ, वो अलग बात है, अगर बॉडी बैठा हुआ है तो आप उसे हिला नहीं सकते, आपको रोटेशन में कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा कि आपका बॉडी अलाइव है। मैं एक ये दिखाना चाहता हूँ, मेरा कंपनी का लास्ट जो प्रोजेक्ट रिलीज हुआ था, मूवी रिलीज हुआ था, वो राइट, उसका उसका ट्रेलर है मेरे पास। एक मिनट, स्क्रीन शेयर हुआ है? यस यस यस। ओके, ये एक छोटा सा ट्रेलर है, हम लोग ने बनाया था। इसमें 2-3 शॉट्स मेरे भी है। पूरा एक बार देखिए। ঠিক আছে, মনে হয় তোর সাউন্ড আসছে না ভিডিওটায়, সাউন্ড শেয়ার করা নেই মনে হয়। সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না? না না, হতেও পারে, সাউন্ডে অনেক সময় ইয়েতে জিনিসে অনেক ইস্যু হয়। না হলেও কোনো অসুবিধা নেই, যদি সাউন্ড না আসেও শেয়ার করতে না পারি কন্টিনিউ করতে হবে। আচ্ছা, আমি আদার কোনো জায়গাতে দেখতে পাচ্ছি না, আমি এটাই কন্টিনিউ করছি। ওকে ওকে। হুম। মধ্যে যদি একটু তুই ব্রিফ করিস এর সাথে সাথে, যেহেতु साउंड শোনা যাচ্ছে না, तो कौन ओके। शॉटটাকে তুই কাজ করেছিস বা कौन सा शॉट तुमने खुद किए हो, या मतलब लाइक हाँ। लिटिल डिटेल्स की हाउ यू, हाँ, व्हाट इज ओके। एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन दिस इज दिस मूवी इज ऑल अबाउट कि एक एल्फ था, जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला किधर गया? ये
ये जो एल्फ है ये मेन कैरेक्टर है, इसका सपना है कि ये एक दिन सेंटा से मिलेंगे। तो बेसिकली ये जब जो एक एलिजिबल होता है ये सेंटा से मिलने के लिए, सेंटा का जहाँ पे काम चलता है ये वाला जगह, मतलब इधर वो सेंटा अपने जो खिलौने होते हैं वो बनाते हैं। इधर आके वो सेंटा से मिलने के लिए जब गए तो इसको पता चला कि सेंटा ही किडनैप हो गए, ठीक है। तो सेंटा को बचाने के लिए ये पूरा कहानी है कि कैसे सेंटा को वापस लाएंगे और क्रिसमस को सेव करेंगे बेसिकली, क्योंकि सेंटा नहीं है तो क्रिसमस भी नहीं है। तो वैसा एक स्टोरी है इसका। और शॉर्ट्स बोले तो मेरा एक कौन सा वाला गया, ऊपर से नीचे आने वाला एक शॉर्ट था मेरा, ये वाला, इसके बाद आएंगे, ये वाला शॉर्ट था मेरा। और अच्छा, ये जब शॉट आप लोग के पास आता था, कैसे किस तरीके हाँ, की ये शॉट आप लोगों को दिया जाता था? डिस्क्राइब अस द ओके प्रोसेस। ओके। तो पहले आपके पास बेसिकली जो चीज रहता है वो दो चीज रहता है, एक एनिमेटिक्स और एक लेआउट। ये दो वीडियो आपके पास रहेंगे। एनिमेटिक्स में पोजेस का एक स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा कि कैसे पोज चाहिए उन लोगों को, क्लाइंट लोगों को। और लेआउट में जो रहता है वो पोजीशन रहता है कि कहाँ पे कैरेक्टर्स को प्लेस करना है, कहाँ पे एंड करना है कैरेक्टर्स को, ये रहता है। और जो एक चीज रहता है वो है क्लाइंट ब्रीफिंग। क्लाइंट ब्रीफिंग को हम लोग शॉर्ट चालू करने से पहले सुन लेते हैं, क्योंकि उधर क्लाइंट कुछ स्पेसिफिक चीजें बताते हैं कि क्लाइंट को क्या चाहिए। हो सकता है कि एनिमेटिक्स में कुछ ना हो और क्लाइंट को कुछ अलग चाहिए, कि क्लाइंट कुछ स्पेसिफिक एक्टिंग करेगा, कुछ स्पेसिफिक एक्टिंग चॉइसेस है, तो वो ब्रीफ में आपको बता दिया जाता है। देन आपको वो जो एनिमेटिक्स है, एनिमेटिक्स का आपका जो एनिमेटिक्स है, आपके पहले का 2 शॉट का एनिमेटिक्स और आपके बाद का 2 शॉट का एनिमेटिक्स प्रॉपर ये लाइन अप बना के लेके जाना पड़ता है आपके टीएल्स के पास। मतलब वो इससे क्या एनिमेटिक्स, होता है, वो एनिमेटिक्स, अगर सॉरी टू इंटरप्ट, मतलब जो पहले और बाद का जो एनिमेटिक्स है वो हो सकता है आपने खुद नहीं बना रहे, लेकिन हाँ आपको वो एक साथ दिखाने का मतलब है हुकअप समझाना है कि ये पूरा सीन हाँ कैसे। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है कि आपको तो शॉट एक मिल गया, लेकिन वो शॉट कहीं पे जाके किसी के आगे किसी के बाद बैठेगा, और आपको वो मैच कराना होता है, वो फ्लो, वो एक्शन, वो स्पीड, सब कुछ मैच करना होता है। और आप ये तभी कर पाओगे जब आप प्रॉपर वो लाइन अप फॉलो करेंगे। तो हम लोग वो 5 वीडियोस का एक सीक्वेंस बना के हम लोग टीएल्स के पास जाते हैं, और उसके पास वो एक टीएल ब्रीफ जो रहता है कि मैं क्लाइंट ने ये ब्रीफ दिया है और मैं ऐसे ऐसे मैं करने की सोच रहा हूँ। तो अगर टीएल अप्रूव करते हैं तो हम लोग वो शॉर्ट्स चालू करते हैं प्रॉपर। हम पहले जो गोल्डन पोजेस रहते हैं, जो मेन की पोजेस रहते हैं, वो अप्रूव करा लेते हैं, और उसके बाद स्टेप मोड में हम लोग प्रॉपर ब्लॉकिंग चालू करते हैं उसके हिसाब से। मेरा इसमें एक सवाल है, ये जो अभी शब्द हम्म। आपने बताया गोल्डन पोजेस और की पोजेस, नाउ यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई बिलीव ये शब्द की पोज हम लोग पता नहीं कितने मिलियन ट्रिलियन टाइम बोल चुके हैं। Could you please say something about what is the importance of this key framing or key poses? क्यों इसको गोल्डन पोज बोला जाता है? की पोज काइंड ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं एक बुक है, मैं रिकमेंड करूंगा सारे एनिमेटर्स को कि द सर्वाइवल किट फॉर एनिमेटर्स। एक बहुत बढ़िया बुक है, आप जनरेशन वन से एक ही बुक जो हम लोग सब पढ़ते चुके हैं। तो उसमें प्रॉपर दिखाया गया था कि एक कैरेक्टर आ रहा है स्क्रीन से, इधर आ रहा है, आके बीच में से वो चौक उठाया और उठ के उधर बोर्ड में लिखने के लिए गए। तो ये पूरा स्टोरी में 3 चीज हो रही है, एक कैरेक्टर आ रहा है, कैरेक्टर बीच में आके वो नीचे से चौक उठा रहे, फिर लास्ट में जाके वो बोर्ड में कुछ लिख रहा है। तो इसमें जो की पोजेस रहेगा, मतलब की पोज मतलब ऐसा पोज या ऐसा पोजेस जिससे आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो विदाउट एनिमेशन। आप वो पोज डाल दो, आपको जो भी जिसको भी दिखाना है वो समझ जाएगा कि ये शॉट है। तो इसमें जो की पोज है वो एक आने वाला एक पोज, कि कैरेक्टर स्क्रीन से इधर आ रहा है, वॉकिंग हो सकता है, खड़े तो नहीं रहेंगे, वॉक से आ रहे हैं, बीच में आके वो नीचे झुक के पकड़ा वो चौक, दूसरा पोज हो गया। और तीसरा पोज हुआ कि वो बोर्ड के सामने जाके वो लिखना चालू किया।
ये 3 पोज से हम लोग प्रॉपर वो जो स्टोरी है वो हम लोग दिमाग में छप गए हमारा। तो इसे हम लोग की पोजेस कहते हैं, क्योंकि इन तीनों पोजेस के बीच में आपका एनिमेशन जो है वो बिल्डअप होगा। अगर आपका ये 3 पोजेस गलत है तो आपका स्टोरी टेलिंग गलत है, कहीं ना कहीं आपका बेस गलत है, और आपको हो सकता है कि आगे जाके आप एनिमेशन भी कर लोगे तो आपको फिर से दोबारा चालू करना पड़ सकता है। राइट राइट, थैंक यू अरितो। अरितो, जो जिस डिस्कशन में हम लोग थे पहले से कि जी ह्यूमन बॉडी मैकेनिक्स, तो ये जो ह्यूमन बॉडी मैकेनिक्स है वो प्रोडक्शन स्टूडियो में जब आप लोग शॉट करते हो, अगर ऐसे कुछ शॉट के बारे में आप थोड़ा बता सकते हो कि जिसमें आपको चैलेंजेस फेस किया आपने इस ह्यूमन बॉडी मैकेनिक्स को बना करते हुए, इफ यू कैन डिस्क्राइब और शोकेसिंग लिटिल बिट अबाउट इट। और इट विल बी रियली हेल्पफुल अगर आपके पास कोई एनिमेटिक्स जैसा ऐसा कुछ हो, जैसे आपने अभी बताया ना कि एनिमेटिक्स से आपने बनाया, अगर आपके पास कोई पुराने प्रोडक्शन की, आपके पास कोई प्रोडक्शन एनिमेटिक्स हो which you can share with the students, then that will be great. मैं एनिमेटिक्स तो शेयर नहीं कर सकता क्योंकि I वो understand. कंपनी के वो कंपनी के प्रोप्राइटरी चीज है। I totally understand. So no. लेकिन मैं एक एनिमेटिक्स फॉलो करके वैसा ही एक एनिमेटिक्स था, और वैसा एक लाइक स्टोन लिफ्टिंग एनिमेशन था। एक हेवी ऑब्जेक्ट को वो उठा रहा है, उठा के कहीं पे डाल रहे हैं। ऐसा मैंने एक एनिमेटिक्स से मैंने एक ब्लॉकआउट किया था, तो मैं वो शेयर करना चाहूंगा। प्लीज that will be really great also. Thank you. श्योर। जस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि जो मैं की पोजेस बोल रहा था या बेसिक जो पोजिंग चाहिए वो कैसा रहता है। Right. ओके, दिस इज द शॉट। सिर्फ पोजिंग है। तो ये जो शॉट है ये ब्लॉकिंग, हाँ, काइंड ऑफ ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग शॉट, स्टेप मोड। ओके। इसमें जो मेन चीज है वो है जो मैंने की पोजिंग का बात कर रहा था। एक हो गया ये पोज, ठीक है, ये वाला झाड़ू पकड़ते हुए ये शॉट, ये पोज, ये बीच का कुछ नहीं चाहिए, राइट, कुछ नहीं चाहिए। एक हो गया ये भी जरूरत नहीं है की पोज में, ये भी ब्रेक डाउन नॉर्मल इन बिटवीन पोज है, ठीक है। ये हो गया दूसरा पोज, की पोज, और ये हो गया लास्ट वाला पोज, ये तीसरा मेन की पोज। तो ये तीनों पोज क्या समझ में आ रहा है कि वो उधर खड़ा था, कुछ कर रहा था, बीच में एक बॉल था, बूम था, और वो आके वो पकड़ के वो इधर इसमें डाल रहे। इससे ये चीज क्लियर है। तो एक मिनट, ओके। सो बॉडी मैकेनिक्स का जो मैं बात कर रहा था, एक मिनट, ये प्ले क्यों नहीं हो रहा? हाँ, ओके। पोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बॉडी मैकेनिक्स का नहीं, पूरा एनिमेशन में पोजिंग। अगर मुझे पूछो कि एनिमेशन क्या है तो मैं बोलूंगा कि इट्स अ सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल गुड पोजेस। एब्सोल्युटली, इट्स अ काइंड ऑफ आपका जो मेन पोजेस है, आपका इन बिटवीन पोज कहीं कैसा भी हो, मतलब आप इधर से वो चीट कर दो, हैंड को स्ट्रेच कर दो, वो आर्क मेंटेन करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। आपका हैंड इधर लंबा हो रहा है, इसका ऐसा हो रहा है, वो दिखेगा नहीं, वो इन बिटवीन में निकल जाएगा। लेकिन आपका वो निकल के जो लास्ट पोजिंग में आ रहा है वो अगर बढ़िया हो तो एनिमेशन ऑलरेडी आपका 80% नेल्ड है। तो ये जो मैं पोज, एक मिनट, कुछ तो हो रहा है, एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट पोज है, ये जो पकड़ने का टाइम। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये इस पोज को बहुत तरीके से किया जा सकता है जो कि गलत है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक बार कैमरा को ऑन करूंगा क्योंकि कुछ दिखाना है मुझे। एक मिनट,
आप मुझे देख सकते हो क्या? Yes, I can see you. I can see you. Yes, sir. ओके। मुझे सर मत बोलना, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। Anyways, अगर मैं एक हेवी चीजें पकड़ रहा हूँ, जैसे कि मेरा फोन जो कि हेवी नहीं है, ठीक है, तो मैं इधर बैठ के ये आराम से पकड़ के ऐसे ऐसे बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, जिससे ये साबित होता है कि ये हैवी नहीं है। पर अगर क्रैम्प आ गया मेरे पैर में, ठीक है, अगर मैं किसी हेवी चीज से डील कर रहा हूँ, सो व्हेन योर बॉडी इज डीलिंग विद समथिंग हेवी, योर बॉडी हैज टू काउंटर काउंटर दैट हेवी थिंग। आप ऐसे देख सकते हो कि अगर कोई बाल्टी पे पानी भर के लेके जा रहा है, उसको ऑटोमेटिक दूसरा हाथ ऐसे ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? देयर इज नो रीजन। कोई रीजन नहीं है कि इस हाथ पे पकड़ा और इस हाथ ऊपर गया, ये हाथ ऊपर गया। वी आर डीलिंग विद दैट ऑब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड, सो आवर बॉडी इज रिएक्टिंग अकॉर्डिंगली। तो जब मैं कुछ भारी चीजें पकड़ूंगा, तो आवर बॉडी स्टेबल नहीं हो सकता। वी हैव टू स्ट्रगल। तो हेवी चीज जब हम उठाते हैं या फिर कुछ भी डील करते हैं बिग ऑब्जेक्ट से, उससे हमारा बॉडी का इम्पैक्ट आता है, बॉडी स्ट्रगल करता है। तो हेवी वेट लिफ्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वी हैव टू शो द स्ट्रगल। वो आसान नहीं लगना चाहिए। आप कुछ भी करो, आप फंबल करो। फंबल कैसे किया जा सकता है? ये आप इसे ध्यान में लगेंगे जब आपका पोजेस एकदम सही हो जाएगा, तो ये उसके बाद आता है जो भी मैं बता रहा हूँ। फंबल मतलब बॉडी उठाया, पोज में आया, बहुत भारी है, और फिर थोड़ा पीछे गया, थोड़ा 2 स्टेप बैक लिया मैंने। उससे क्या पता चलता है कि वो इतना भारी है कि आपको भी वो धकेल रहा है पीछे। सो यू हैव टू गो बैक एंड देन सेटल, देन यू हैव टू पुट द वेट। सो आपका बॉडी का भी वो एनर्जी जा रहा है। जैसे जो आर्क होता है, एनिमेशन में आर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं एक भारी चीज को उठाया, मेरे पास भारी चीज बोले तो कुछ है, तो मैं बता सकती हूँ। हाँ, तो ये मेरे पास एक डंबल है। तो That is good. ये मैं मैं अगर इस चीज को उठाया, तो मैं ऐसे नहीं उठा सकता। अगर ये भारी है तो मैं ऐसे इसको दूर नहीं रख सकता। वी हैव टू कम क्लोजर। जो भी पत्थर या फिर जो भी आपसे भारी है, वेट है, उसको आपको उसके ऊपर आना पड़ेगा आपको उठाने के लिए। देन द पोजेस विल लुक कन्विंसिंग। अगर आप ऐसे उठाएंगे, कोई नहीं बता सकता ये हैवी है। अगर आप ऐसे उठाएंगे तो बता सकते हैं कि वो हैवी है। क्योंकि मेरा जो हैंड है उस बिल्कुल इसके नीचे आ रहा है, और इससे क्या होता है, इससे ये बिगड़ रहा है, इसका बैलेंस बिगड़ रहा है, और ये एकदम प्रॉपर सीओजी एकदम सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है। और फिर मैं इसको, और एक चीज होता है लीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीडिंग ये बहुत तरीके से किया जा सकता है, बहुत चीजों के साथ किया जा सकता है। मतलब हेड के साथ लीड किया जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। हेड इज लीडिंग, बॉडी इज लीडिंग, और लेग इज लीडिंग, और जो आइडर्स होता है, जो प्यूपिल रहता है, उससे हम लीड कर सकते हैं। तो इन दिस केस अगर मुझे इसको हेवी दिखाना है, तो मेरे बॉडी में क्या लीड करेगा? आवर हेड। मैं और हेड को ऐसे ढीला नहीं कर सकता, मुझे हेड से पूरा वेट लेना पड़ेगा, और फिर हेड से ही मुझे उसे टर्न करके, हेड बाद में आएगा। जब नीचे रख रहा हूँ उल्टा हो रहा है, हेड बाद में आ रहा है। तो उससे क्या होता है, उससे वो जो प्रॉपर जो स्ट्रगल है वो दिखा सकता। और एक चीज जो स्ट्रगल दिखाता है वो है फंबल, मतलब आपका जो शेक हो रहा है। अब ऐसे ये जो हाथ जो कांप रहा है, इसको भी आप दिखा सकते हो। पॉलिशिंग स्टेजेस में ऑफ कोर्स आप इसका पोज नहीं बना सकते स्टार्टिंग में। ये आपको जो शॉट जितना आगे जाएगा, जितना आपको फील डालना है, या जितना आपका सुपरवाइजर कहेगा कि ये चीज डालो, ये उसको उस शॉट को इधर से इधर लेके जा सकते हैं। सो इफ आई कम बैक टू दिस शॉट, ये वाला जो पोज है, जैसे कि मैंने बोला, एकदम आपका जो हेड है, आपका जो चेस्ट है, और आपका जो हैंड है, वो एकदम स्ट्रेट है वेट के हिसाब से। जहाँ पे वेट है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम स्ट्रेट है कैरेक्टर्स के बॉडी का। मतलब आपका कैरेक्टर्स एकदम वेट का ऊपर आ गया है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको दूर से नहीं पकड़ सकते, ऐसे ऐसे पकड़ लिया नहीं होगा, आपको ऊपर आना पड़ेगा उसको उठाने के लिए।
and then this is what I am saying, leading with the head is going up, हैंड इज देयर, हैंड इधर पे स्टिक है क्योंकि उसको अभी भी और जोर लगाना पड़ेगा उस चीज को उठाने के लिए। लेग्स आर फम्बलिंग, लेग्स कांप रहे, और फिर ऊपर जाके हेड अप हो रहा है। अब इसे देखेंगे कि बॉडी बहुत कम ही ऊपर जा रहा है, लेकिन हेड देखे कितना रोटेट हो रहा है। आप उसको हेड को थोड़ा ट्रांसलेशन भी कर सकते हो, थोड़ा स्ट्रेच भी कर सकते हो वो फील लाने के लिए कि आपका हेड जो है वो रियली स्ट्रगल कर रहा है। और ये लाइन ऑफ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सी है, सी शेप जो बन रहा है इधर। स्टार्टिंग में जो था जब, हेलो, You continue, Arjun. You continue. Somebody else just ओके ओके। सो ये जो पोज था ये हमारा सी कर्व में है, जो आर्क है आप देख सकते हो हेड और लेग्स की सबसे सी में है। लेकिन जैसे ही हम लोग ऊपर गए ये उल्टा सी हो गया, उल्टा सी। सो उल्टा सी हुआ ये होगा, ये स्ट्रेट नहीं खड़ा रह सकती क्योंकि स्ट्रेट खड़ा रहेगा तो ये गिर जाएगा सामने। इसको पीछे की तरफ काउंटर लेना पड़ेगा अपने हेड के साथ, आपके चेस्ट के साथ, और जो 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 वेट है वो वेट उसी जगह पे है। आप अगर फॉलो करेंगे उसका ट्रेजेक्टरी अगर फॉलो करेंगे, वेट उधर ही है, हैंड उधर ही है, लेकिन जो अपर बॉडी है वो जितना हो सके पीछे जा रहा है, इट्स गोइंग बैकवर्ड जितना पॉसिबल है। एंड देन द शिफ्ट कम्स, आपको आगे जाना है तो इट्स ऑल्सो लीडिंग विद द अपर बॉडी। यू कैन सी द चेस्ट इज गोइंग फॉरवर्ड, legs are still going upwards, head is following the forward direction rotation। और ये देखिए हेड देखिए कितना वो सामने की और उसकी जहाँ पे उसको जाना है उधर जा रहा है, उधर मोड़ रहा है। इसका आईज अगर आप देखेंगे इसका क्वालिटी बहुत खराब है। आईज उस साइड है जहाँ पे वो बॉल डालेगा, आईज उस साइड, आईज ऑलरेडी वो ट्रेवल कर चुका है, जिससे मैं बता रहा था ना आईज आई डार्ट के साथ लीड करना। बिकॉज इफ यू आर गोइंग समवेयर you have to see that, उसको आपको देखना पड़ेगा उस साइड, फिर आप हेड के साथ उधर टर्न होते हो। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन। आईज उधर गया, हेड जा रहा है, बॉडी आया, स्टेप लिया। सो देयर इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, एक मिनट, माय स्क्रीन, ओके। व्हेन जब आप शिफ्ट करते हो, मतलब आप एक जगह से एक जगह पे आप वेट के साथ जा रहे हो या फिर वेट के बिना ही जा रहे हो, आप टर्न में हो गया या फिर नॉर्मल जस्ट वेट शिफ्ट, व्हाट हैपेंस इज आपका लेग पहले जाता है, उधर स्टेबल होता है, प्लेस होता है प्रॉपर, देन योर हिप गोज। अब ऐसे नहीं कर सकते कि लेग्स और हिप एक साथ चला गया, लेग्स ऊपर गया, हिप ऊपर गया, ये नीचे गया तो वो नीचे गया। You have to break the thing। हाँ, फॉर पोजिंग के टाइम आप एक साथ कर रहे हो, लेकिन आप लास्ट में जाके आपको वो डिले ऐड करना पड़ेगा, आपको वो शिफ्ट डालना पड़ेगा। एक फ्रेम हो गया, 2 फ्रेम हो गया, आप जितना चाहिए सीओजी को बाद में आने के लिए आपको बाद में करना पड़ेगा। हमारा पैर स्टेबल हुआ एंड देन योर हिप जो सीओजी है गोज एंड देन योर अपर बॉडी रिएक्शन। Thank you so much. That's so much detailed narrative regarding body mechanics. और so next question I would like to ask you that अभी जो आप लोग जो प्रोडक्शन में जब काम करते हो, तब प्रोडक्शन में आपके पास एक शॉट्स आता है, क्या उसके साथ आपका खुद का, क्या आप लोग एकदम ब्लाइंडली एनिमेटिक्स को फॉलो करते हो, या आपको उसमें अपना, मतलब आपका एनिमेटिक्स आपका कितना हेल्प प्रोवाइड करता है? हाँ, कितना प्रोवाइड करते हैं इन अपने शॉट के लिए? If I go with the statistics, 20% for the poses। आपको वो पोजिंग और आपको इमोशन वो आपको डाल देगा आपके दिमाग में कि कैसा चाहिए, कि आपके अंदर वो इन बिटवीन कुछ नहीं रहता है। बेसिक वो जो की पोजेस मैंने दिखाया वो रहता है, और बीच बीच में कहीं पे वो हो सकता है कि मोशन ब्लर के हिसाब से ऐसे बना दिया पोज, आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि इसको कैसे हाँ, और उसके लिए टाइमिंग तो एटलीस्ट आप लोगों को मिल जाता है कि कितना सेकंड्स का है, एनिमेटिक्स आपको मेनली वो शायद दे देता है। यस टाइमिंग। हाँ, हाँ, तो
उसमें क्या आप लोगों का खुद का एक्टिंग रेफरेंस या वीडियो रेफरेंस ये सब का भी क्या जरूरत पड़ता है जब आप लोगों के पास कोई शॉट्स आते हैं? तो हाउ मच यू नीड टू क्रिएट योर ओन रेफरेंस या कोई भी वीडियो रेफरेंस से आप देखते हो, मतलब ये जो रेफरेंसिंग प्रोसेस है इसके साथ आपका जो खुद का जो क्रिएटिविटी है, खुद का इमेजिनेशन है, आप उसको मैच कैसे करवाते हो? बिकॉज क्यों मैं ये सवाल करता हूँ, स्टूडेंट्स के सामने ही मैं क्लैरिटी दे देता हूँ। जब ये पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है, इन फ्यूचर में भी होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्टूडेंट्स एक तो एनिमेशन रेफरेंस फॉलो करते हैं। आई एम श्योर आप तुम लोग जब स्टूडेंट्स, आप लोगों के टाइम पे भी हम लोग, मैं ऐसे ही बोलता था कि कोशिश कीजिए जो ऑलरेडी एनिमेशन बन चुका है उसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए। ये प्रॉब्लम ये यहाँ पर हम लोगों का स्टूडेंट से ये फॉलो अप होता है। सेकंड जो इश्यूज हम मैं देखता हूँ कि जब इसके पास कोई रेफरेंस आ जाता है, कोई भी वीडियो रेफरेंस हो, they have intention to intentionally और unintentionally हो सकता है अच्छा बनाने के चक्कर में उसको एकदम फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी करना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या होता है उसमें जो गलती, बिकॉज दैट्स अ लाइव वीडियो राइट, एक रियल ह्यूमन कर रहा है और यहाँ पर एक 3D कैरेक्टर या एक पर्टिकुलर कैरेक्टर करे, तो दोनों का एनाटॉमिकल डेफिनेशन, दोनों का एक्टिंग डेफिनेशन अलग है। सो ये ऑलरेडी हम लोग कोशिश तो करते ही है एज ए मेंटर के तौर पे कि इसको समझाया जाए, बट मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस है इसको आप लोग कैसे एक साथ जोड़ के एक शॉट में डालते हो? एनिमेटिक्स, वीडियो रेफरेंस, आपका खुद का इमेजिनेशन। So when you are copying animation, you are copying the mistakes also, जैसे कि आपने बताया। एब्सोल्युटली। सो अगर वो पर्टिकुलर एनिमेटर जो भी वो एनिमेशन बनाए हैं वो अगर 20% गलती किया है तो आप हो सकते हैं 30% करोगे, क्योंकि वो भी एक मेंटर से सीख रहा है। वो मेंटर उसने बताया और 20% उसके हिसाब से वो गए नहीं, वो मिस्टेक्स उधर रहेंगे। उसका मेंटर बोले ठीक है चलो 20% है छोड़ दो, आप उसको देख के कर रहे हो तो आपका वो 40% हो जाएगा। तो आपका जो गोल है वो नेल करना होता है, हर एक शॉट्स को आप नेल करना चाहते हो कि कितना अच्छा आप कर सकते हो। तो आप ऐसे कभी नहीं सोचेंगे कि आप किसी ऐसी चीज को फॉलो करें जिसके अंदर ऑलरेडी गलतियां हैं। तो हम लोग हमेशा रियल लाइफ इवेंट्स या फिर रियल लाइफ कैरेक्टर मूवमेंट्स ये सब फॉलो करेंगे। जो लाइव एक्शन जो भी मूवीज रहता है, जो रियल लाइफ फुटेजेस हमारे पास है, अगर नहीं भी है तो हम लोग शूट करते हैं। हम लोग ऑफिस में भी करते हैं। मैंने भी किया हूँ। एक ऐसा शॉट था कि एक कैरेक्टर आ रहा है, दौड़ के आ रहे हैं और नीचे एक लॉलीपॉप गिरा हुआ है। तो लॉलीपॉप के ऊपर उसने पैर रखा और वो एक पैर में ऐसे जंप करते करते वो लॉलीपॉप को छुड़ा रहा है। कैसे वो लॉलीपॉप जाएगा? तो उस हिसाब से मेरे अंदर मैं पोजेस तो बना लूंगा बिना रेफरेंस के, लेकिन वो जो मूवमेंट, वो टाइमिंग या फिर वो जो लाइव है, मतलब वो कैरेक्टर लिविंग कैसे दिखा रहा है, मतलब वो स्ट्रगल कर रहा है, उस फीलिंग को मैं दिमाग में ऐसे नहीं ला सकता विदाउट प्रॉपर वीडियो रेफरेंस। सो मैंने वो शॉट करने के लिए ऊपर गए हमारे ऊपर एक फ्री रूम टाइप का कुछ है और उधर हम लोग शूट कर लेते हैं जहाँ पे हम लोग स्ट्रगल करते हैं। तो हम लोग ऊपर जाके वो 2-3 ऐसे वर्जन्स बनाए, 2-3 मतलब हो सकता है कि एक चीज बाद में नीचे आके समझा कि हाँ ना इसमें तो ये चीज गलत हो गई। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि रेफरेंस जब भी बनाओगे 2-3 वेरिएशंस, 2-3 ऑप्शंस ऐसे हम लोग रखते हैं। आप लोग भी रखेंगे तो आपका ही वो ऑप्शंस बढ़ेगा कि अच्छा इसमें ये अच्छा है, इसमें ये गलत है। तो दोनों का मर्ज में मैंने कुछ अलग अच्छा चीजें बना दिया कि इस चीज में ये चीज अच्छा लग रहा है, ये लास्ट वाला पार्ट अच्छा नहीं लग रहा, दूसरे वीडियो में लास्ट वाला बहुत बढ़िया है। तो मैंने एनिमेशन में दोनों मर्ज कर दिया। तो मेरे एक जो HOD है इधर का, वो बहुत एक अच्छी चीजें बताई थी कि जब आप एक्टिंग चॉइस या फिर जो भी चीज कर रहे हो, जो भी शॉट कर रहे हो, देन एक शॉट का होता है कि आप एनिमेटिक्स को देख के एक आइडिया आ जाता है कि ऐसे ऐसे एक्टिंग कराना है, इस ऐसे हैंड जेस्चर्स रहेंगे, ऐसे हम लोग एनिमेशन करेंगे, ये हो गया। हमारे दिमाग में एक ऑलरेडी फर्स्ट जो आता है उस चीज को हम लोग निकाल देंगे दिमाग से, वो चीज नहीं करना है। तो हमारा जो प्रॉपर अंदर की चीजें आएंगे, डिटेल्स में जो एक्टिंग कैसे होता है, तब हमारा दिमाग खुलेगा कि हाँ इसको भी ऐड करना है। अगर हम लोग वो कंफर्ट जोन में आ गए ना, पहले वाली ऑप्शन ही लेना है, तो ऐसा क्या होगा कि हर एक शॉट्स ना सिमिलर जैसे दिखने लगेंगे, That is a वेरिएशंस नहीं होंगे। fantastic thought, Sarithro. मतलब I am so Yes. want to say thank you to you and to your head of the department of your production studios. That was a fantastic lesson. I think all of the students, all of us should keep this thing in mind. जो
जो अपने जहन में सबसे पहले जो थॉट्स आता है वो दैट इज योर कंफर्ट थॉट्स, उसको सबसे पहले वो कितने भी अच्छा उसको निकालो, फिर दूसरे से स्टार्ट करो। दैट मीन्स द सेकंड पोजीशन शुड बी द फर्स्ट पोजीशन। ग्रेट ग्रेट, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। तो ये चीज मेरा भी मतलब होता है ना, एक आंखें खोल दी कि अच्छा ऐसे भी एनिमेशन होते हैं। मैं तो पहले कैसा होता था कि एक डायलॉग आ गया, गुस्से में है, दिमाग में ये पोज आ गया, वो डाल दो, वही जैसे कि बेस्ट ऑप्शन है। तो जैसे मैंने वो ऑप्शन पूरा ऑमिट कर दिया, धीरे धीरे मुझे और अच्छे पोजेस या फिर और अच्छे वेरिएशंस जो है, पर ऐसा नहीं है कि हर एक्टिंग में हर एनिमेशन में आपको बड़ा 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 जेस्चर्स दिखाने हैं। यू कैन ऑल्सो एक्ट सटल। उससे क्या होता है, ये दिस इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब आप जैसे बड़े बड़े एक्शन से जो अच्छा एनिमेशन कर सकते हो ना, उससे बहुत ज्यादा अच्छा एनिमेशन कर सकते हो अगर आप सटल एनिमेशन को समझ गए तो। मतलब जैसे फेशियल में जो सटल मूवमेंट्स होते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, आपको दिखाने की, आप किसी चीज को देख के डर रहे हो तो आपको ऐसे दिखाना जरूरत नहीं है, आपको आंखें से दिखा सकते हो कि डर है। जब आप उस चीज को समझ गए ना, तो आपको आपका एनिमेशन बहुत बेटर होगा। तो दैट इज अ वेरी क्या बोल सकते हैं, एक डायरेक्शन मिल सकता है कि आपको कैसे एनिमेशन करना है। हाँ, बड़ा एक्शन चाहिए होता है, लेकिन मैं हमेशा मतलब जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो बिगिनर्स रहते हैं, उसका शोरील में ये देखता हूँ कि हर एक डायलॉग में, हर एक चीज में एक बड़ा एक्शन, बड़ा चीज है, और एक एक साथ हो रहा है। सो दैट इज वेरी रोबोटिक, वो लाइफ फीलिंग नहीं आता। हम लोग एनिमेशन तो करते हैं, बट दैट इज लिविंग, दैट शुड नॉट लुक लाइक आर्टिफिशियल। तो दैट इज वेरी मैकेनिकल काइंड ऑफ थिंग। अभी जो वो सब कोई बना देगा, मतलब एक साथ आ रहे हैं, एक साथ एनिमेशन हो रहे हैं, बड़े बड़े एक्शन हो रहे हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। कहीं कहीं पे स्मॉल स्मॉल चीजें करो। एक एक ऐसे हम लोग बोलते हैं कि ब्रीदिंग स्पेस। हमारा बड़ी बड़ी चीजें देख के ना हमारा आंखें कभी कभी बोर हो जाते हैं, कि नीड रेस्ट। हमारे आंखों को थोड़ा वो सटल चीजें देखना पसंद है। जैसे होता है ना, अब अगर आप सुबह गाना एक चालू करेंगे, रॉक म्यूजिक, तो वो रॉक म्यूजिक हमेशा पूरा एंड ऑफ द डे आप वैसे नहीं सुन सकते, वो दिमाग दर्द करने लग जाएगा कि कब से सुन रहा हूँ वो गिटार गिटार ड्रम्स एंड ऑल। यू नीड सम स्मूथ सूदिंग म्यूजिक एंड ऑल आल्सो। सो वो आपको पुट करना पड़ेगा इन बिटवीन द एनिमेशंस। एनिमेशन को मैं हमेशा वो म्यूजिक के साथ कंपेयर करता हूँ, दैट इज वेरी, मैं मानता हूँ कि वो बहुत सिमिलर चीजें हैं। जैसे एक म्यूजिक होता है, एक ग्राफ होता है म्यूजिक का भी, एक पिच रहता है, वो एनिमेशन का भी एक पिच रहता है। एंड वी हैव टू पिच इज मींस द डायलॉग, और डायलॉग की सबसे हम लोग वो बॉडी का वो जो पिच जाता है, वो जाता है। तो मैं एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, उसमें जो इंस्ट्रक्टर था वो बोल रहा था, आप डायलॉग को, जब आपके पास डायलॉग आता है, आप जो एनिमेटिक्स है वो निकाल दो, ठीक है, वो मत देखो। डायलॉग आप सुनो और एक पेपर और पेन लो और उस पिच को ड्रॉ करो, मतलब वो ग्राफ को ड्रॉ करो। जैसे आई वांट टू बी एन एनिमेटर, आई वांट टू बी एन एनिमेटर, आई, वो लास्ट में जाके वो ग्राफ ऊपर गया, मतलब आपको उधर बड़ा एक्शन डालना है। स्टार्टिंग में आई वांट टू बी एन एनिमेटर, तो इस ग्राफ का वो पिच को फॉलो कर। अगर आपका वो बड़ा एक्शन ही कंटिन्यू रहा स्टार्टिंग से, आई वांट टू बी एन एनिमेटर, उसमें आपका वो बहुत रिजिड लग रहा है, वो इमोशन के हिसाब से आपका वो एनिमेशन नहीं जा रहा। दैट इज वेरी गुड टिप एक्चुअली। फैंटास्टिक অরিত্র, आई बिलीव এখানে তোমরা যারা আছো, जो भी स्टूडेंट्स आज यहाँ पर ये सेशन अटेंड कर रहे हो, ये जो एक प्रोडक्शन एक्सपीरियंस का जो थॉट्स है, if you please start putting these things in your own work, स्पेशली जो इस अरित्र ने अभी बताया, ये हम लोग काफी टाइम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर चुके हैं कि एक साथ चीजों को मत मूव करो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड एनिमेशन। सो आई बिलीव Aritra have been summed up lots of things in a very quality way. So thank you so much, Aritra, for sharing so much information and knowledge with us, with these students. Aritra, now I would like to ask the students that if anybody wants to, ask any question to Aritra, this is open mic session. मैं तो पूछूंगा ही, मेरे पास तो बहुत सारे सवाल है, मतलब मेरा सवाल शुरू हो जाएगा तो शायद टाइम कहाँ से निकल जाएगा पता नहीं। बिकॉज मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि सी आज जो भी चीज अरित्र शेयर कर रहा है,
मैं तो अभी प्रोफेशनली एनिमेशन नहीं करता हूँ और रेगुलर बेसिस क्लासेस नहीं लेता हूँ, बट अभी क्या हो रहा है, ये सब सुन के ना वो रिविजिट्स होता है पहले, अरे এগুলো তো আমরাও জানতাম। রাজ, you want to- all right, if anybody wants to ask any question, please unmute yourself and then ask, otherwise you don't have to unmute yourself. Please maintain the decorum of this whole seminar. So any questions, please unmute yourself and ask audio. And please say দেবাংশু your স্যার, yes, Shushmita. সো হ্যাঁ, আমার যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেটা লাইক হচ্ছে ফাস্ট শট আর স্লো শট, মানে অ্যাক্টিং শটে যেগুলোতে আমরা লাইক খুব অর্গানিক স্লো মুভমেন্ট করি, মানে অ্যাক্টিং করছি, ভয়েস অ্যাক্টিং করছি, স্লো ব্রিদিং হচ্ছে, আর ফাস্ট যেগুলো অ্যাকশন শট হয়, যেগুলোর মধ্যে লাইক খুব ফাস্ট মুভমেন্ট হচ্ছে, কোনো ওয়েপন নিয়ে ইয়ে করছি। আমার মেইন ইস্যু হয় লাইক মুভিং হোল্ড বা যে কোনো টাইপের হোল্ড বা সেটেল পোজ যেগুলো দেওয়া হয় ফাস্ট অ্যাকশনের জন্য, সেইগুলো নিয়ে যদি আপনি আমাকে কোনো রকম টিপস দিতে পারেন যে ওইটা কিভাবে করতে হয় বা কত টাইমিং এর মধ্যে করতে হয়, কোনো টেকনিক বা কিছু। Auditro, it's your class now. হ্যাঁ, ওকে। বেসিক্যালি তুমি তোমার কোশ্চেনটা শুনে যতটা মনে হলো, যেটা अच्छा हिंदी सॉरी, जो फास्ट एक्शन रहता है या फॉर एग्जांपल आप पंचिंग शॉट, ठीक है, काइंड ऑफ फास्ट शॉट, उसमें एक चीज आती है, एक दिक्कत हर एक एनिमेटर्स को आता है, वो इम्पैक्ट समझाना कि वो इम्पैक्ट हो रहा है। अगर वो इम्पैक्ट नहीं है उस शॉट में, फाइटिंग शॉट में या फिर हिट शॉट में, হ্যাঁ, भी हो गया ওয়েটটা फास्ट বোঝানো। सीक्वेंस का शॉट, जंपिंग, हाँ, वो वेट समझाने के लिए आपको आपका जो मेन चीज रहेगा वो है, फॉर एग्जांपल आई हैव समथिंग, आई थिंक, एक मिनट, मैंने स्क्रीन शेयर किया एक, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पंचिंग शॉट, okay, so this is a pose, this is a pose, दिस इज अ पोज, 3 गोल्डन पोज, इसके बारे में मैंने बात कर लिया ऑलरेडी। अब इसको वेट वेट कैसे समझाए, देखिए हैंड को देखना, जो जिस हैंड से पंच मार रहा है, पीछे गया, बॉडी सामने आ गया, वो पीछे जा रहा है, बिकॉज वी आर गैदरिंग एनर्जी विथ आवर फिस्ट, बॉडी आ गया सामने, अभी जब वो रिलीज करेगा तब स्नैप होगा, मतलब इधर से डायरेक्ट वो बड़ा स्पेसिंग, पीछे जाते जाते वो स्लो हुआ, मतलब स्लो हुआ, स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजेस, मेरा एक पोज इधर है, मेरा दूसरा पोज ये है, तो ये कम स्पेसिंग है, मेरा एक पोज इधर है, दूसरा पोज इधर है, तो ये बड़ा स्पेसिंग है, तो ये छोटा छोटा स्पेसिंग बढ़ता जाएगा जितना वो पीछे जा रहा है, और फिर जब सामने आएगा फिर वो झटक से जाएगा, मतलब स्नैपी जैसे हम कहते हैं। देखना जब फास्ट, देखिए ये बड़ा स्पेसिंग और उससे भी बड़ा, ये इसको आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं, आपका हैंड जो है उससे और आगे आपको ट्रांसलेट वो भी कर सकते हैं, हिट किधर हुआ, हिट इधर हुआ, और ये देखिए फिर से वो कम जो कम स्पेसिंग वाला जो ये है फ्रेमिंग है, इधर से फिर से चालू हो गया, दैट मीन्स दिस इज कुशन, दिस थिंग इज कुशन, और कुशन से पहले क्या हुआ, बड़ा स्पेसिंग, और एक चीज वेट दिखाने के लिए, इधर तो सामने आ गया, लेकिन देखिए ये आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, हिट इधर हो गया तो इधर ये आगे क्यों जा रहा है, बिकॉज ही इज स्टॉपिंग हिमसेल्फ। एक चीज ध्यान रखना है, जब आप मार रहे हो किसी को, यू आर गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपका जो कंफर्ट जोन है, जैसे आप खड़े रहते हो उससे आप बाहर जा रहे हो, आप स्ट्रेच हो रहे हो, आप उधर अगर रुक गए तो आप गिर जाओगे, आप आउट ऑफ बैलेंस, दिस इज एन आउट ऑफ बैलेंस पोज, ठीक है। यू हैव टू काउंटर इट बाय व्हाट, आपका वो चेस्ट आगे जाएगा एंड योर सीओजी विल ऑटोमेटिकली गो बैक एंड देन यू हैव टू सेटल। देखिए आपका लेग आ गया, पहले लेग स्टेबल हुआ, फिर हिप नीचे गया, देखिए
फिर हिप नीचे, जो मैं बात कर रहा था, लेग पहले जाएगा, सेटल होगा, फिर आपका जो सीओजी है उसके ऊपर आएगा। सो हाँ, एक मिनट, हाँ, जैसे एक कॉमन टर्म है बैलेंस, कैरेक्टर्स को कैसे बैलेंस करना होता है। तो हमारा जो सीओजी है हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो स्ट्रेट, मतलब पूरा सीओजी दोनों पैर के एकदम बीचों बीच है, जो कि बहुत लाइक टी पोज कहते हैं हम लोग, कोई भी लाइक आर्क नहीं है, प्रॉपर स्ट्रेट है। दैट इज व्हाट वी कैन स्टैंड, लाइक उससे हम खड़े रह सकते हैं, दैट इज पॉसिबल, ओके। और एक चीज होता है जो हम आर्क मेंटेन करते हैं, थोड़ा एक वेट शिफ्ट डालते हैं, उससे क्या होता है, वो कभी कभी प्रॉपर जो करेक्शन हम लोग को मिलता है कि ये पोज आउट ऑफ बैलेंस है, ये गिर जाएगा इधर। कैसे हम लोग उस चीज को फिगर आउट कर सकते हैं कि हमारा सीओजी अगर एक साइड पे गया, तो वो जो जिस साइड पे जा रहा है, लेफ्ट लेग के साइड जा रहा है या फिर राइट लेग के साइड जा रहा है, जो भी है, राइट लेग के साइड अगर वो वेट गया, तो वो जो सीओजी है वो प्रॉपर राइट लेग के ऊपर आना चाहिए। अगर वो सरपस कर दिया, मतलब तुम इधर खड़े हो और तुम्हारा सीओजी इधर है, तो ठीक है, तुम्हारा सीओजी इधर जा रहा है और तुम्हारा लास्ट लेग इधर है, तो दैट इज एन आउट ऑफ बैलेंस पोज। तो आपको वो माइंड में रखना पड़ेगा कि आपको जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक लेग के ऊपर आपका वो सीओजी आना चाहिए, तो दैट इज बैलेंस। ये आप ट्राई कर सकते हो आपका एनिमेशन में, आपका पोजिंग में, तो आपको बहुत क्लियर आ जाएगा कि आपका पोज सही है कि नहीं है। आई थिंक मैं आंसर दे पाया हूँ, एक बार आप क्लियर कर सकते हैं मुझे। Yes, that अगर कोई भी you You are answered my absolutely question. right. I have a follow-up question. हाँ हाँ, श्योर श्योर। So जो आप बोले कि that is about weight, that was also one of my problem, is one of my consistent problems. But I also want to know कि मैं जो बोली like moving hold या settle हम लोग जो देते हैं, like after a pose we hold that pose for a while. So in fast shots, like fast जो action है, जो punch हम दे रहे हैं, पंच के टाइम में हमको वो फास्ट है, वहां पे कोई होल्ड नहीं होगा, बट जब कुशनिंग देंगे या फिर वाइंड अप देंगे, उस पोजीशन पे हम लोगों का या तो वाइंड अप का एक सेटल टाइप का या फिर पोज होल्ड टाइप का रहेगा, या कुशनिंग के टाइम रहेगा, या लाइक कौन से टाइम में हम लोग वहां पे वो सेटलिंग का ये देंगे, टाइम देंगे उस एक्शन को। कुशन कुशन का टाइम रहेगा ना, मतलब आप एक पोज में आ गए, तब जब वो कुशन जा रहे हैं तभी आपका होल्ड आएगा। और तो द इनर्शिया पंच, जब ये टेक ओवर कर रहा है, जब इनर्शिया को काउंटर कर रहे हैं, तब हम लोग लाइक टाइम देंगे उस पोज को हाँ हाँ, उसको बैलेंस सेटल करने होने के के लिए। लिए, वो एनर्जी जो उसने रिलीज किया उसको सेटल करने के लिए उधर हम टाइम देंगे। और फिर वो जो पोज में आया वो स्नैप होगा, फिर वो फास्ट आएगा। कुशन गया गया और फिर वो फास्ट। और एक चीज ओके, आता है कि पंच पंच देने से पहले भी हम लोग होल्ड किए थे। अगर मैंने वो वीडियो दिखा था, वो पीछे गया, चेस्ट आ गया, लेकिन वो हैंड पीछे जा रहा है, लेकिन हाँ, द दैट हैंड हैंड वाज इज, डिलेइंग। yeah, that hand is delaying and our body is like gathering the energy, so then we can snap. ओके, अनदर क्वेश्चन। Hmm. आप जो बोले कि सीओजी बाद में आएगा, अगर लेग लेग शिफ्ट हो रहा है, अगर लेग शिफ्ट होगा फिर सीओजी आएगा, फिर हिप का अगर मूवमेंट आएगा, तो ऑब्वियसली पोज के टाइम में हम लोग जब की पोज बनाते हैं सब एक साथ बनाते हैं। तो आफ्टर दैट यूजुअली प्रोडक्शन में आप लोग क्या ग्राफ एडिटर से उसको बैक आउट फोर्थ करते हैं या डोप शीट से करते हैं, लाइक किससे आप लोगों को लाइक इजी होता है वो काम करना, डिले या फिर फास्ट अगर कुछ करना है उसके हिसाब से। Generally पोज एक साथ बना लिया, सिमिलर सिमिलर विदाउट एनी डिलेस, देन आप सीओजी को पकड़ सकते हो, हिप को पकड़ सकते हो, जो हिप रोटेशन वाला कंट्रोलर रहता है, और उसको हाँ, आप ग्राफ एडिटर से आपका जो प्रॉपर जो ग्राफ्स है उसको आप एक दो फ्रेम आगे कर सकते पीछे या आगे, हो। हाँ हाँ पीछे हाँ या आगे। हाँ हाँ। ओके, उससे क्या होगा, वो ऑलरेडी उसका मोशन जो है वो डिले हो गया। हम लोग हेड के साथ भी करते हैं, जहाँ पे हम लोग ऐसे इधर डायलॉग बोल के ऐसे टर्न करके जा रहे हैं, सो आवर हेड इज लीडिंग, सो मैंने एनिमेशन पूरा ऐसे कर दिया, वॉक कर दिया, और फिर पूरा हेड का और नेक का जो भी कंट्रोलर है उसको पकड़ के पीछे कर दिया, तो वो ऑलरेडी वो आ गया। ओके, थैंक यू। दैट इज अ वेरी फास्ट वे ऑफ डूइंग दिस थिंग। आप वो डोप शीट वो सब वो टाइम टेकिंग है, बट इधर से आप स्पीड में कर सकते हो। जस्ट आपको पॉलिश करना पड़ेगा लास्ट में, ग्राफ में जाके वो कुशन प्रॉपर देखना पड़ेगा। या ओके, थैंक यू। Welcome. हाँ सर, मेरे पास एक क्वेश्चन था
हाँ हाँ श्योर। सर मुझे ये पूछना था, आप बोल रहे थे कि कंपनीज में एनिमेटर्स अलग अलग होते हैं एक ही मूवी में एक ही सीन्स को क्रिएट करने के लिए। अ, तो मुझे ये पूछना था कि एक कैरेक्टर को अलग अलग एनिमेटर्स बना रहे हैं तो उसमें एक ही टाइप का फील मतलब उस कैसे देते हैं वो लोग? पहले प्रोडक्शन में कोई भी मूवी स्टार्ट हो रहा है या फिर कोई भी सीरीज स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले जो होता है वो मूवी के बारे में हम लोग को एक मीटिंग होता है बेसिकली। तो आप सभी को एक जगह पे बुला के आपको वो मूवी एनिमेटिक्स के थ्रू आपको दिखाया जाता है। पूरा एनिमेटिक्स आपको दिखाया जाता है, 1 घंटे 2 घंटे जितना भी लंबा वो मूवी हो, उसको दिखा के आपको एक ब्रीफ दिया जाता है। आपके हर एक सिस्टम में एक ब्रीफ रहता है, और ब्रीफ मतलब हर एक कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन, मतलब वो कैरेक्टर्स कैसा है, एंग्री है, गुस्से वाला, पोलाइट, शाई है, वो एक बड़ा बड़ा एक डिस्क्रिप्शन रहता है पर्टिकुलर हर एक कैरेक्टर्स के लिए। तो वो हर एक लोगों को फॉलो करना होता है, वो पढ़ना पड़ता है, और वही चीज आपको दिमाग में रख के आपको एनिमेशंस भी करना पड़ता है कि ये कैरेक्टर्स ऐसा है, ये कैरेक्टर्स का हाथ हमेशा ऐसा रहता है, या फिर ज्यादा बड़ा एक्शंस नहीं करता क्योंकि वो शाई है। अगर कोई भी पर्सन को देखेंगे जो शाई है, वो हमेशा थोड़ा क्लोज रहता है, ज्यादा वो बड़ा चीज नहीं करते या फिर वो बैक ऑफ करते हैं। तो वो चीजें आपको एज एन एक्टिंग आपको डालना पड़ता है कि हाँ चलो वो शाई है तो मैं एक्टिंग में ऐसे डालूंगा। और आपका ये आपके पास वो जो लाइब्रेरी भी है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लाइब्रेरी मतलब आपको वो प्रॉपर वो कैरेक्टर का आइडियल, मतलब वही कैरेक्टर सिर्फ सांस ले रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं, और उसी आइडियल एनिमेशन का दो कैरेक्टर्स का अलग अलग रहता है। मतलब एक अगर गुस्से वाला है तो वो ऐसे ऐसे ब्रीथ कर रहे हैं, ऐसे ब्रीथ कर रहा है, अगर शाई है तो वो नॉर्मल थोड़ा ब्रीथ करता है। तो वो भी आप यूज कर सकते हो, वो भी उसी सेम बीच बीच में। कैरेक्टर का? हाँ नहीं सेम कैरेक्टर का नहीं, एक कैरेक्टर का एक आइडल रहता है। मतलब हर एक कैरेक्टर्स का अलग अलग आइडल्स रहते हैं, पर वो आइडल्स सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं रहता, अलग अलग ब्रीदिंग रहता है, क्योंकि कैरेक्टर्स की हिसाब से जैसे वो ब्रीथ करना चाहिए वैसे जाता है। यस, थैंक यू सर। Okay, anyone else, please? স্যার আমার একটা কোশ্চেন Sir, আছে। I have an okay. One by one. সুস্মিতা, হ্যাঁ বলো বাকিদের বলো। কি এক্ষুনি বললে আমার একটা প্রশ্ন আছে। আমি বললাম স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ বলো শোনো। হ্যাঁ স্যার আমরা যখন প্রোডাকশন হাউসে যাব, কি যেটা আপনি বললেন মিটিংটা হবে, এটা আমাদের কি একটা যে 1 ঘন্টার জন্য যে মিটিংটা আপনাদের হয় সেটা আমাদের কি একটা স্ক্রিনে দেখাবে না পুরো একটা প্রজেকশনে দেখাবে? হ্যাঁ, ওটা যেটা কোম্পানিতে যে এরকম অ্যাভেলেবেল থাকবে, বিগ স্ক্রিন বা ল্যাপ, তোমার সিস্টেমও দেখাতে পারে, তো তোমাকে ওটা একসাথে সবাইকেই দেখতে হবে, ওটা অ্যাটেন্ড করতে হবে, কারণ ওটা না দেখলে তুমি মুভিতে জাম্প করতে পারবে না পুরো মুভিটা। কারণ অনেক সময় মুভি বানানোর আগে আমাদের জানতে হবে যে একটা ক্যারেক্টার কেন কাজটা করছে। মানে হতে পারে একটা ক্যারেক্টার স্টার্টিং এ একটা কাজ করছে, বাট দ্যাট ইজ ফর আ রিজন, যেটা আমরা লাস্টে গিয়ে বুঝবো অ্যাজ অ্যান অডিয়েন্স। বাট অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট তোমাকে ওটা স্টার্টিং থেকেই জেনে রাখতে হবে। एज एन आर्टिस्ट তোমাকে लास्ट के तुम जानो ओ अच्छा ये कैरेक्टरটা এর জন্য করছিল না, वो ये कैरेक्टर इसीलिए कर रहा था, आपको वो पहले से मालूम होना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को फील को डाल पाओगे कि ये कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है, तो आपको वो क्यों डालना पड़ेगा एज अ एनिमेशन। ঠিক আছে স্যার। Anybody else? আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? Please. Sir, Yeah, sure. I have a job related kind of question. Okay, so এখন আমাদের অনেক রকম জব আসছে, মানে আপনার মতো আমারও ইচ্ছা আছে অ্যানিমেশনে যাওয়ার, মানে বেসিক্যালি আমি আমার ফিল্ডটা চেঞ্জ করেছি এই জন্য। সো আমার এখন অনেক রকম জব আসছে যেখানে প্রোডাক্ট ডিজাইনিং, প্রোডাক্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, লাইক মডেলিং রিলেটেড, টেক্সচারিং, লাইটিং রিলেটেড জব আসছে। সো আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে, আমি যদি প্রাইমারিলি এই টাইপের কোনো জবে ঢুকি, পরবর্তীকালে আমার যদি আমি এক্সপিরিয়েন্স নেওয়ার পর ট্রানজিশন করতে চাই, আমার অ্যানিমেশন রিলেটেড ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকতে কি অসুবিধা হবে, নাকি আমার প্রথমেই অ্যানিমেশন রিলেটেড জবগুলোতেই অ্যাপ্লাই করা উচিত? দেখো, ঢুকতে ঢুকতে অসুবিধা হবে না, তুমি ঢুকে যেতে পারো, বাট তোমার এক্সপিরিয়েন্সটা কাউন্ট হবে কিনা এটা শিওর না। মানে তুমি একটা জিনিস, তুমি বড় তুমি ডাক্তারি করছিলে, ডাক্তারি করতে করতে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং এ যাচ্ছে, তো তখন তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং এ গিয়ে তুমি তো কাঁচি ওইসব ইউজ করবে না। সেটাই, হ্যাঁ। তো তোমাকে অ্যানিমেশনের ব্যাকগ্রাউন্ড জিজ্ঞেস করবে, তুমি অ্যানিমেশনে তোমার কেমন কাজ করেছো, ঠিক আছে কাজ করোনি, তুমি কোনো প্রজেক্টের নাম নিতে পারছো না, তোমার কারেন্ট শরীর তোমাকে দেখাতে হবে,
আর সেই শরীরে দেখে शरीर को देख के लोगों को पता होना चाहिए कि ये 2 साल से काम कर रहा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये 2 साल আমাকে कुछ শরীরটা আপডেটেড রাখতে হবে, Updated- প্র্যাকটিস করতে থাকতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ নিজের থেকে So গ্রো that counts also. হ্যাঁ Okay, thank you. Is there any questions? Aurithro, first of all, what can I say? সহজ ভাষায় ছোট করে যদি বলি ফাটাফাটি। থ্যাংক ইউ You did fantastic. I mean, Riya ma'am was little skeptical कि Aurithro was nervous, কি করবে না করবে, but Aurithro was flawless. Aurithro was flawless today. So I hope, please, yes, please. So I would like to ask all the students, তোমরা যারা যারা এখানে আছো, please share your feedback, whether you like this. I hope this total seminar was very informative. The way you guide them, the way you acted out the whole sequence, মানে I was sometimes missing my old times. Yeah, that was it. That it should be. See, what is the best part, you know, Aurithro? जब ये सब चीज देखते हैं ना, जब आप लोग आते हो स्टूडेंट्स से प्रोफेशनल बन के, तो लगता है कि ये एक लेगेसी है जो कभी खत्म ना होने वाला है। एक ही चीज हम लोग बार बार, मतलब हम लोग कभी भी लगता है आज AI आया है, इतना कुछ आया है, फलाना फलाना सब कुछ हो गया है, लगता है चीजें बदल जाएगा। बट इन टुडेज जनरेशन, you are presenting today's generation animation, but the process is same. मतलब अगर आपको चावल बनाना है, दाल बनाना है, तो चूल्हा जलाना पड़ेगा, आपको पानी गर्म करना पड़ेगा। मतलब आई डोंट नो whatever the technology will be, but I think चलने के लिए 2 पैर चाहिए, 2 हाथ चाहिए, तभी आप इंसान बनेंगे। इंग्रेडिएंट्स चाहिए। Exactly. So that will be that's fantastic, Aurithro. I'd like to ask again by rest of the students, if anybody wants to ask any question, please feel free to unmute and ask. তোমরা এর পরেও আমাকে জানাতে পারো, আমরা ডেফিনেটলি অরিত্র কাছে পৌঁছে দেবো। এন্ড অরিত্র, থ্যাংক ইউ সো মাচ, মানে আমি এর থেকে বেশি কিছু তো বলার নেই। थैंक यू सर एंड मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। अरे sir, मतलब बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। मैं ऐसे ही सेमिनार्स बहुत ज्वाइन किया था मुकुल में, और कभी ऐसा सोचा नहीं था कि बाद में हेलो অরিত্র, হ্যাঁ হ্যাঁ অরিত্র একটা বলো। কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি। যখন আমরা ইন্টারভিউতে অ্যানিমেটর রিলেটেড কোনো জবের জন্য মেশিন টেস্ট দেব, তখন কি টাইপের ওরা দিতে পারে, মানে অ্যানিমেশনের কি রকম টাইপের কোশ্চেন বা কি করতে হতে পারে, মানে মানে সেটা কি ইন্টারভিউর জন্য I will narrate. ইন্টারভিউর জন্য যখন কোনো কোশ্চেন, মানে একটু অ্যানিমেশনের যে ইন্টারভিউর জন্য ইন্টারভিউতে কি ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে? Well, that's another good question. ओके सो काइंड ऑफ सब हर एक क्वेश्चन का वो फॉलो थ्रू उधर से आता है कि फंडामेंटल्स क्या है, ये आपको बेसिक आपको याद रखना पड़ेगा। पूछता है नहीं पूछता है बात की बात है, पर ये एक आपको सॉलिड आइडिया रहना चाहिए कि हर एक प्रिंसिपल का मतलब क्या है। आप कोई भी प्रिंसिपल का कुछ भी एग्जांपल आपको पूछ सकते हैं कि सॉलिड पोजेस, सॉलिड ड्राइंग्स ये क्या है, पोज टू पोज और स्ट्रेट अहेड में डिफरेंस क्या है। तो हर एक प्रिंसिपल्स आपको समझना चाहिए। और बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे मैं एक शॉर्ट दिखा रहा हूँ मैं, मेरे पास है कि नहीं पता नहीं, आई थिंक नहीं है, तो मैं डिस्क्राइब करता हूँ। मेरा एक स्टूडियो 56 का एक टेस्ट था कि एक कैरेक्टर, मतलब एक डायलॉग दे दिया था, कुछ नहीं सिर्फ डायलॉग। मैंने कैरेक्टर्स लेके ऐसे किया कि एक कैरेक्टर, इधर एक ब्लॉक रखा था मैंने, एक खंबा टाइप का ब्लॉक रखा था, पॉलीगन से नॉर्मल जस्ट पॉलीगन, तो उधर ऐसे हाथ रख के वो आगे आके वो डायलॉग डिलीवरी कर। तो उस पे मेरे को फॉलो अप क्वेश्चन, मैंने मतलब जो टीएल इंटरव्यू लिए थे वो पूछे थे कि वो ब्लॉक क्यों रखा मैंने, उसका रीजन क्या है। सो आपको वो क्लियर रहना चाहिए कि आप एक शॉट बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो, कैसे आप प्रोग्रेस करो और क्यों है। What is the thought behind the shot? क्या क्यों बनाया? What is the plan behind the shot? That block is because वो जो डायलॉग था बहुत कॉन्फिडेंट डायलॉग था। अगर हम लोग कोई भी अगर आदमी कॉन्फिडेंट है तो वो आगे आता है, वो अपने जेस्चर्स फैलाता है। तो मैंने वैसे ही वो आगे आके वो बताने के लिए वो ब्लॉक रखा था, ताकि उसका जो कैरेक्टर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टर का रहता है जो है,
वो उसको और एनहांस कर सके। तो दैट इज द क्वेश्चन आई हैव फेस्ड इन दिस स्टूडियो 56 इंटरव्यू। और एक क्वेश्चन था कि एनिमेटेड मूवी और एनिमेटेड वेब सीरीज में क्या डिफरेंस रहता है। मैं कभी भी मैं सपने में भी ये क्वेश्चन का प्रिपरेशन नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसे भी क्वेश्चंस करते हैं लोग। तो दैट वाज आल्सो अ ट्रिकी क्वेश्चन। থ্যাঙ্কস। স্যার আপনি এটা কি উত্তর দিলেন? वो मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, पर मैं जो बोला कि सपोज एक मूवी बनता है तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए बनता है, मतलब उसका एक बड़ा प्लानिंग नहीं रहता है। तो वो अगर अच्छा बना नहीं बना तो लाइक दे हैव टू नेल्ड एवरीथिंग, बट दैट इज वेरी शॉर्ट टर्म आइडिया कि एक मूवी बना, नहीं चला तो उसका पार्ट 2 नहीं बनेगा, चल गया तो पार्ट 2 बनेगा। बट अगर एक सीरीज आया तो उनका वो जो बिल्डअप है वो बहुत अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा। लास्ट में स्पेशली आपका एक वेब सीरीज में लास्ट एपिसोड आया, उसमें आपका जो स्टोरी टेलिंग है वो पीक होते होते खत्म होगा। दैट विल मेक द ऑडियंस मोर इंटरेस्टेड फॉर द नेक्स्ट सीजन और नेक्स्ट एपिसोड। तो ऐसे ही आपका जो वेब सीरीज रहेगा उसका एनिमेशन या फिर उसका एडिटिंग बोल सकते हो, उसका स्टोरी टेलिंग ऐसे खत्म होता है जनरली। এমনি অনেক তো ক্লাসের বাইরে এমনি স্যার, নেট থেকে পাওয়া যাবে রিসোর্স, বা কোনো নেট থেকে কোন সাইট থেকে দেখলে আরো অন্য অ্যানিমেশনে আরো আছে কিছু? বুঝলাম না, আরেকবার সৃজিত আরেকবার কোশ্চেনটা একটু বলো যদি, তাহলে আমরাও তোমাকে হ্যাঁ বলছি, এমনি ক্লাস তো করছি, ক্লাসের টিউটোরিয়াল দেখছি, ইন্টারনেটে কোনো রিসোর্স ফ্রি কিছু আছে যেটা দিয়ে অ্যানিমেশন আরো শিখতে পারবো আমি ইন্টারনেট থেকে বা এআই থেকে? হ্যাঁ নিশ্চয়ই পারবে। তোমার এটা আমার মনে হয় অরিত্র বা আমরাও একই জানি। প্রথম কথা হচ্ছে তুমি যদি তোমার বেসিক অ্যানিমেশনে ভালো করে কাজ করো, তারপরে তোমার সঙ্গে তুমি ডেফিনেটলি দেখো, এটা পুরোপুরি ডিপেন্ড করে হচ্ছে তোমার প্র্যাকটিসের উপরে। তুমি যত বেশি করে প্র্যাকটিস করবে, যত বেশি করে শর্ট তৈরি করবে, তুমি তত বেশি শিখবে। আলাদা করে ইন্টারনেটে অনেক কিছু ইন্টারনেটের আছে, এবার সেটা তুমি কোনটা তোমার জন্য ঠিক কোনটা তোমার জন্য ঠিক নয় সেটা তোমাকে বুঝতে হবে। বুঝতে পারলাম সৃজিত? হ্যাঁ স্যার। Okay. Okay, any more questions guys? Okay, আর কি বলবো বলো রিচা? থ্যাংক ইউ। ছাড়া একটা শনিবার দিন তুই এতটা সময় কাটালি, আমি জানি শনিবার তো ছুটির দিন। সো না হাফ ডে ছিল। আমরা অফিস করে তারপরে এতটা সময় ইভিনিংটা কাটালি। তুই এখন ব্যাঙ্গালোরে তো, রাইট? নাকি ব্যাঙ্গালোরে কোথায় আছিস? ব্যাঙ্গালোরে বজরাহাল্লি বলে জায়গা ওখানে। আমারও কিঞ্চিত বছর তিনেকের কাটানোর অভিজ্ঞতা আছে ব্যাঙ্গালোরে। আজকে মানে সামহাউ হাফ ডে, মানে হাফ ডে তো নামের হাফ ডে, মানে কাজটা ফুল ডে করতে হয় আমি জানি। তো সামহাউ আমি আজকে শেষ করে অ্যাটেন্ড করতে হতো আমাকে, তো আমি এসেছি যে না আমি অ্যাটেন্ড করব, কোনোভাবে কাজ করব। উই রিয়েলি আই এম ভেরি মাচ গ্রেটফুল। এবং তোর সাথে এরপরে আরেকটা ওয়েল প্ল্যান সেমিনারও আমরা প্ল্যান করব, একটু সময় নিয়ে তোর সাথে আলাদা করে বসে। সো টিল দেন অরিত্র, আমি পুরো মপেলের তরফ থেকে, আমার সম্পূর্ণ স্টুডেন্টের তরফ থেকে উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক। একা বাড়ির বাইরে আছিস, সাবধানে থাকিস। I love that you have dumbbell in your house. Use that. কারণ আমরা অ্যানিমেটররা ভীষণ ইগনোর করি নিজেদের বডি পোজ বা নিজেদের পশ্চারকে। আমরা ভালো গোল্ডেন পোজ বানাতে নিজেদের পোজ ওল্ড। I know that. So take care of your health. That is very important. And God bless you, beta. Take care. Thank you sir. You are most welcome. Thank you everybody. Please Thank you everyone. Thank you Thank you, sir. Bye guys. থ্যাংক ইউ স্যার। bye. থ্যাংক ইউ স্যার। Bye guys. Bye. ও তো কালকে ভালো বৃষ্টি হবে।